Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapith School. Today we are going to do the exercise part of the chapter 6, Combustion and Flame. I have given you some questions in your homeworks. I hope you all have done it. The first question is, list conditions under which combustion takes place. The burning of a substance in the presence of oxygen is defined as combustion. तो आपको कुछ कंडीशंस बताने हैं जिस कंडीशंस में एक कम्बशन का जो प्रोसेस है ये ऑकर होता है द कंडीशंस अंडर विच कम्बशन टेक्स प्लेस आर द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, द प्रेजेंस ऑफ फ्यूल्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल हियर, ignition temperature is maintained, it is defined as the substance that catches fire at its lowest temperature. So students, आप ये आंसर्स भी लिख सकते हैं और या फिर आपके जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको जो कंडीशंस दिया था नोट्स में, आप वो आंसर भी यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके. The third question is, explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. तो आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम लोग CNG जो फ्यूल है उसकी मदद से कैसे हम लोग पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं. So CNG played an important role in reducing pollution among automobiles for the following reasons. The first reason is CNG is comparatively cleaner fuel. The CNG can be an alternative for diesel, petrol and propane, which is LPG. It usually contains a fuel undesirable gases than the other fuels mentioned above. The combustion of fuels like petroleum causes many unburnt carbon particles along with carbon monoxide, which leads to respiratory diseases. जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्यों हम लोग CNG यूज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादातर क्लीनर फ्यूल है और उसको हम लोग डीजल और पेट्रोल की जगह में अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. उसमें कुछ बहुत ही कम अनडिज़ायरेबल गैसेस हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं, और पेट्रोलियम जैसे कि पेट्रोल और डीजल है उसका जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो हमको रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस कॉज कर सकते हैं, लेकिन CNG ये नहीं करता है. ओके. द फोर्थ क्वेश्चन इज, यू हैव टू कंपेयर LPG एंड वुड एज अ फ्यूल. LPG, it does not cause pollution on combustion, but wood causes pollutes on its combustion. LPG does not produce any smoke, but wood produce smoke. LPG is a liquid fuel, whereas wood is a solid fuel. LPG has more calorific value, like 55,000 kilojoule per kg, but wood has less calorific value, like 17,000 kilojoule per kg. LPG can be easily transported as it is stored in cylinders, but wood cannot be transported easily like LPG fuels. Fifth question is, you have to give reasons for this statement. Like, water is not used to control fires involving electrical equipment. तो वाटर हम लोग जो आग लगता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जब आग लगता है तो वाटर क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं हम लोग? Because water is a good conductor of electricity. If we added water to electrical fire, the water would just spread the electricity further. The person dousing the fire might get an electric shock. अगर हम लोग जो वाटर डालेंगे तो वो जो पर्सन है, फायर में जो पर्सन है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, और हम लोग को पता है कि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. और जो वाटर हम लोग डालेंगे तो वो जो आग है उसको ज़्यादा बढ़ा देगा इलेक्ट्रिसिटी में. द सेकेंड वन इज़, LPG इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड. वाई? LPG being a cleaner fuel, that wood doesn't release smoke and other pollutants. As we already studied in the previous question, that wood on the other hand releases a lot of smoke and fumes, polluting the atmosphere, causing pollution and lead to respiratory diseases. Hence, LPG is a better domestic fuel than wood. The third question is, paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not. तो अगर हम लोग जो पेपर है एक एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर दे दें तो वो जल्दी
फायर, उसमें जल्दी आग नहीं लगेगा, लेकिन खुद एक पेपर में जल्दी आग लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली बिकॉज ऑफ इट्स लो इग्निशन टेम्परेचर। एक रीज़न क्या है? पेपर का इग्निशन टेम्परेचर एल्यूमिनियम के इग्निशन टेम्परेचर से बहुत कम है। द पीस ऑफ पेपर wrapped around an aluminum pipe does not catch fire because aluminum is a good conductor of electricity, while the paper wrapped around an aluminum pipe results in an increased ignition temperature. So there is a transfer of heat from paper to the aluminum pipe, hence it does not catches fire. तो सिर्फ पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, पर एल्यूमिनियम का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, इसीलिए जल्दी एल्यूमिनियम में आग नहीं लगता है, और वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। 8 क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो आग लग जाता है उसको फायर को कंट्रोल कैसे कर सकता है? एज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन कंबस्टिबल गैस एंड एक्सटिंग्विशेस फायर्स इन 2 ways. First way is it is heavier than oxygen and it covers the fire like a blanket and cuts off the contact between oxygen and fuel. Second way is in cylinders, carbon dioxide is kept in liquid form. When released, it expands enormously. This brings down the temperature of the fuel, which helps in controlling the fire. तो आपको जैसे पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक नॉन कंबस्टिबल गैस है और फायर को 2 तरीके से एक्सटिंग्विश कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो फायर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, एयर प्रेजेंट रहता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हैवी है, और वो क्या करता है? वो जो फायर को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर देता है, और जो एयर का है ऑक्सीजन के साथ फ्यूल का जो कंटैक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर कवर कर दे वो कंटैक्ट वो तोड़ देता है। इसी वजह से एयर मतलब फायर जो है वो क्या है? वो बुझ जाता है, आग बुझ जाता है, क्योंकि आग जलने के लिए एक कंडीशन क्या है कि एयर ऑक्सीजन या फिर एयर का होना ज़रूरी है। तो अगर उसी का कंटैक्ट हम लोग काट दें तो वो क्या होगा? फायर अपने आप बुझ जाएगा। सेकंड क्या है कि सिलेंडर्स में क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और जब उसको हम लोग एक प्रेशर से निकालते हैं बाहर तो वो बहुत जल्दी फैलता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, और जो टेम्परेचर है उसको बहुत एकदम कम कर देता है और फायर कंट्रोल करने में मदद करता है। 9th क्वेश्चन इज, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर ईजिली। एक्सप्लेन। क्यों होता है? एक बहुत हरे पत्तों को जलाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग अगर ड्राई लीव्स को देखें कि वो जल्दी वो जल्दी बर्न हो जाते हैं, फायर जल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स कंटेन्स अ लॉट्स ऑफ मॉइस्चर इन इट and its ignition temperature is high. Therefore, it does not catches fire easily. But dry leaves have no moisture content in it, hence its ignition temperature is low. Therefore, it catches fire. तो heap of green leaves के जो एक heap है, तो वो क्या करते हैं? ग्रीन लीव्स जो होते हैं उनमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से उनका इग्निशन टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो वो ईज़िली बहुत ईज़िली फायर उसमें नहीं लगता है। लेकिन जो ड्राई लीव्स होते हैं उनमें जो मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, इसी वजह से उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता है और जल्दी ही उसमें आग लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज्ड फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वॉइन। तो कौन सा जोन गोल्ड स्मिथ सोनार कौन सा जोन यूज़ करता है सोने और सिल्वर को उसको मेल्ट करने के लिए? द गोल्ड स्मिथ मेनली यूजेस नॉन लुमिनियस फ्लेम विच इज़ टर्म टू बी द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. This part of the flame is used because the outermost flame undergoes complete combustion and it is considered at the hottest part of the flame. तो वो कौन सा पार्ट फ्लेम का यूज़ करते हैं? नॉन लुमिनियस जो पार्ट है, जिसको हम लोग आउटर पास भी बोल सकते हैं फ्लेम का, वो पार्ट यूज़ करते हैं। और वो पार्ट वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो कंप्लीट कंबशन का प्रोसेस वहाँ पे चलता है और वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है और वो ईजीली गोल्ड को और सिल्वर को मेल्ट कर सकता है। ओके, The 11th question is, in an experiment 4.5 kg of a fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be
1,80,000 किलोजूल पर केजी। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो आपको यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है कि एक कितना केजी फ्यूल है। यहाँ पे 4.5 केजी फ्यूल है और वो कंप्लीट कंबशन कंप्लीटली बर्नड हुआ है, ठीक है। और जो उसमें से कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ, वो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट एनर्जी कितना निकला, 1,80,000 किलो जूल का हीट एनर्जी वहाँ से निकला। तो आपको अभी इसका कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है। सो यू हैव टू फर्स्ट राइट द हीट प्रोड्यूस बाय 4.5 kg ऑफ फ्यूल इज़ 1,80,000 किलो जूल। तो अगर 4.5 kg में 1,80,000 किलो जूल का जो हीट एनर्जी है वो प्रोड्यूस हुआ, तो 1 kg फ्यूल में कितना प्रोड्यूस होगा। हम लोगों को क्या करना है, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 1, देन यू कैन गेट द आंसर 40,000 किलो जूल पर kg विच इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Now the 12th question is, can the process of rusting be called combustion? क्या हम लोग जो रस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको combustion बोल सकते हैं? नहीं, no, because rusting is an exothermic process as heat is liberated during rusting. On the other hand, combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to release energy in the form of heat and light. तो जो रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट वहाँ पे नहीं लिबरेटेड करता है, वहाँ पे कोई कंबशन का कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कंबशन के प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे हीट और लाइट दोनों फॉर्म करता है, लेकिन रस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। द क्वेश्चन नंबर 13 इज, आबिदा एंड रमेश वेर गोइंग टू डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर इज़ टू बी हीटेड इन अ बीकर। तो अबिदा और रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा पानी एक बीकर में उनको हीट करना है, मतलब गर्म करना है। अबिदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। अबिदा ने क्या किया, बीकर का जो नीचे का हिस्सा है वो कैंडल के एकदम जो येलो पार्ट है, फ्लेम जो येलो फ्लेम है उसके पास जाके उसने रखा बीकर को। रमेश केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो रमेश ने कहाँ रखा बीकर को, जो फ्लेम का जो जितना भी आउटर मोस्ट पार्ट है उसमें रमेश ने वहाँ पे वो बीकर का नीचे का हिस्सा वहाँ पे रखा। तो वो वाटर विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम। तो आपको अभी यही बताना है कि किसका पानी सबसे जल्दी गर्म हो जाएगा। तो द वाटर प्लेस्ड इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम विल बी हीटेड इन अ short time since it is a non-luminous flame and is regarded as the hottest part of the flame. तो जो वाटर जो बीकर और जो पानी फ्लेम का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो नॉन लुमिनियस फ्लेम है और सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है। तो जिसने सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट पार्ट में रखा है उसी का जो बीकर है वो उसमें पानी है जो उसी का पानी जल्दी गर्म होगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट रमेश बीकर विल बी हीटेड फर्स्ट। हाउएवर अबिदा हु प्लेस द बीकर इन द लुमिनियस फ्लेम इज कंपैरेटिवली लेस हॉट। ओके, तो इसी वजह से हम लोगों को क्या जानने को मिला कि जो रमेश का जो बीकर है वो जल्दी हीट होगा क्योंकि वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है फ्लेम का, और आबिदा जो है उसका जो पार्ट है वो बहुत कम हॉट है, इसीलिए वो जल्दी नहीं गर्म होगा। So students, the exercise part has also completed. The chapter has ended. I hope you find this chapter very interesting. You have to learn all the answers and notes very carefully, very thoroughly, and also read the chapter to understand in a proper way. Write these question answers in your fair copy. And students, if you all have any doubt in any part of this chapter, you can ask me. I am going to clear your all doubts. Okay? Till then, stay safe in your home and study this chapter well. We are going to meet soon in the next class with a new chapter. Thank you, students.